Uzair, you can start the recording. Assalamu alaikum. My name is Kiran Amir and I'm the Director of Operations at Parsa Eco Pakistan Super Hub. I would like to welcome you all to new Echo session in series of Hepatitis Echo. It's in collaboration with Pakistan Society of Hepatology. Please try to join the session through iEcho email link to mark your attendance. We also like to thank Ferosens Laboratories Private Limited for their unrestricted educational grant. Before I introduce you to our expert for tonight's session, we have to go through some standard announcements. We are part of a global movement called Project Echo based in USA, intending to disseminate knowledge and best practices. Parsa Echo Pakistan started as hub in 2017 and became the first super hub in Pakistan in 2021. We are following the guidelines of Project Echo, acquire new skills that allow them to treat patient otherwise referred out. Patients with chronic condition get high quality care without travel and waiting. We protect patient privacy, so none of the information in this session will identify any individual or patient. For maintaining discipline, you all are muted, but we do encourage participation, so you can unmute yourself for question or use the raised hand option and chat box. By participating, you have given the consent for recording. The recorded session will be available on request. For CME credits, please get in touch with Uzair. CME credits are affiliated with Jinnah Sindh Medical University. Uzair will share the Google form at the end of the session, which will be active for 24 hours. You are requested to fill it as soon as possible to avail the opportunity of CMEs. For the convenience of the participants, the session is bilingual. Please speak in Urdu or English, whatever language you are comfortable in. Our expert for tonight's session is Dr. Ikramul Haq, is highly qualified, Raja Ikramul Haq. He's highly qualified gastroenterologist with an MBBS degree and specialization in FCPS gastroenterology. Currently serving as a consultant gastroenterologist at Fatma Memorial Hospital in Lahore. He is a dedicated member of the American College of Gastroenterology. Dr. Haq has played a key role as a regional representative of Pakistan Society of Hepatology from 2021 to 2023. His expertise lies in the field of hepatitis Ali Chaudhry on multiple projects related to hepatitis C. Dr. Haq is known for his vocal advocacy of hepatitis awareness and is committed to the eradication of this disease. So I will hand over to Dr. Raja for his presentation. अस्सलाम वालेकुम, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी Ikram, we can hear you. Ikram, before you start, I just take a couple of minutes. I just like to welcome everybody. Or I can see a lot of familiar faces from Mazrab or Dr. Basharat. I can see him. I welcome all of you. And there are other colleagues who have been joining from across Pakistan. हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी कुछ अरसे के बाद हमने हेपेटाइटिस सेशंस को दोबारा शुरू किया है. हेपेटाइटिस बी वी विल जिस हम स्टार्ट करके एंड हेपेटाइटिस सी एंड वी आर प्लानिंग कि जो प्राइमरी केयर फिजिशियन लेवल पे जो क्वेरीज हैं उनको किस तरीके से हैंडल किया जा सके. और इट्स ऑल अबाउट सम बेसिक नॉलेज with an objective of whom to treat and whom to refer. And I tell you, with the knowledge, with some basic knowledge, you should be able to treat 70 to 80% of the patients, which means providing treatment right at the doorsteps, and which is one of the major objectives of Project Echo, that we, instead of moving people, we move knowledge. So I think without further delay, Dr. Ikram, please you can start. जी जी, एक सेकंड में. सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मिस किरण फॉर दिस गुड इंट्रोडक्शन. और उसके बाद थैंक यू सो मच पारसा एको फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, स्पेशली माय टीचर, माय मेंटर असद साहब.
मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी डॉक्टर असद, कैन यू हेयर हिम? मुझे तो आवाज नहीं आ रही उनकी। सॉरी, असल में नहीं, आवाज नहीं, मैं बोल नहीं रहा हूँ एक्चुअली। असल में थोड़ा सा ये शेयर का मसला आ रहा है। जस्ट गिव मी 1 मिनट प्लीज। Sure. I think meanwhile, before Ikram sorts it out, just some basic facts about hepatitis B. Pakistan is still one of those countries with reasonably high degree of prevalence of hepatitis B, or hepatocellular carcinoma is still a major issue. It's no doubt hepatitis C जो है, it's much more as compared to hepatitis B that we see in Pakistan. But the issue is hepatitis B जो है, that's much more complicated in terms of starting the treatment. And quite a few of patients who are diagnosed with hepatitis B, they require monitoring, and a few of them will go on treatment. It goes without saying that the trend is now becoming more and more towards starting the treatment. So this talk today is about epidemiology and natural history of hepatitis B, and yes, so Ikram is back. जी. Over to you, Ikram. I'm just taking up some introduction, and you can go into the slide show mode. I mean, Dr. Ikram, we can see the slides. जी मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, अब आ रही है। जी जी, सॉरी, थोड़ी सी डिस्ट्रप्शन हो गई। मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं जी? जी बिल्कुल डॉक्टर इकराम, वी कैन हेयर यू। जी आ रही है। जी जी, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अच्छा, बेसिकली हेपेटाइटिस के बारे में बोलना इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट बिकॉज we are actually losing thousands of lives annually because of these two viruses. और हमें पता है कि ये preventable भी हैं, और we have very good medicine for these, but unfortunately because of lack of awareness this is actually happening. So आज का जो टास्क है मेरा वो है हेपेटाइटिस बी के बारे में। इसके 3 पॉइंट्स बेसिकली मैंने कवर करने हैं कि इसकी एपिडेमियोलॉजी के बारे में, इसकी नेचुरल हिस्ट्री, और स्क्रीनिंग कैसे करनी है हेपेटाइटिस बी की, कब करनी है, किसकी करनी है। तो हेपेटाइटिस बी जो है वो सबसे पहले 1965 में जो है वो डिस्कवर हुआ था। एंड देन जो हेपेटाइटिस बी की जो स्क्रीनिंग थी ब्लड की प्रोडक्ट्स की, वो 1971 में स्टार्ट हुई। एंड लकीली आफ्टर 16 years of discovery there was vaccine discovered which is doing quite well up till now.
हेपेटाइटिस बी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, और अगर हम बात करें डेथ के हिसाब से तो इट इज 10th लीडिंग कॉज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड, and 2 billion people, like 1 in every 3 person in the world is infected with hepatitis B, and 292 million people are living with chronic hepatitis B infection, and around 1 million people die from this infection each year, despite the fact that we have lot of preventable measures, like it has active and passive vaccines and very good treatment options, but still a lot of people are dying because of this. So we can see a lot of darker areas, but fortunately हम कहाँ लाई करते हैं, हम करते हैं जी लो इंटरमीडिएट इकराम, जोन में, जहाँ पे I'm इट इज sorry to बिटवीन 2 interrupt to you. 4%. आपके जो स्लाइड है वो स्टक है. We are only seeing the slide, the first slide, which is the introductory slide. We are not ओके, seeing the सारा objective. सर कह रहा हूँ, मेरे पास तो खैर वो आगे मूव हो रही है, बट आई डोंट नो कि अब मूव हो रही है कि नहीं सर. No. नॉट येट. Have you shared this slide set with Uzair or anybody? If you can share it with me, I can, जी जी, you मैंने know, वैसे की हुई है, उजैर के साथ भी शेयर की हुई है. Uzair, do you have the slides? मैं दोबारा जी स्लाइड शेयर मैं करूँ सर आपको इसको? व्हाट्सएप कर देता हूँ. नहीं, I have नहीं, the let Uzair share the slide. Uzair, please share the slide. You can stop share, Ikram, and ओके you सर. can just say next so that we can move smoothly. I'm sorry for I think there this. is a journal lag in the internet. हमें पूरे पाकिस्तान में there is a lag, क्योंकि हमें भी वीडियो जो है वो लैग के साथ आ रही है. I think you are with me. Yes, हाँ जी, yes. नेक्स्ट स्लाइड करेंगे प्लीज. Okay. It's not moving on. I don't know what's the issue. If you can go back to the previous version and try के slide के ऊपर stick करके ना, and then you क्योंकि there seems to be some problem with the net. All right, I hope you can see the screen now. I'm moving to the next slide. Yes, yes. जी ठीक है, दैट्स बेटर. हाँ जी, इससे अगली स्लाइड प्लीज कीजिएगा. सो आई विल गो अगेन. तो आज हम कवर करेंगे एपिडेमियोलॉजी, नेचुरल हिस्ट्री एंड स्क्रीनिंग ऑफ हेपेटाइटिस बी. सो प्लीज नेक्स्ट. Uzair, can you move on to the next slide, please? ये हो गई. नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट. हाँ जी, डिस्कवरी के बारे में मैंने और वैक्सीन के बारे में बता दिया. प्लीज नेक्स्ट वन. हाँ जी, ये भी हो गई है. सॉरी, इससे अगली स्लाइड. हाँ जी. सो दिस इज द मैप ऑफ हेपेटाइटिस बी डिस्ट्रीब्यूशन. हमारे एरिया में जो है इट लाइज इन लो इंटरमीडिएट प्रेवलेंस, जो कि तकरीबन 2 से 4% के दरमियान है. WHO के एस्टीमेट के हिसाब से हमारे पास जो पाकिस्तान में जिसकी जो प्रेवलेंस है दैट इज 2.5, जो कि डिफरेंट है अक्रॉस डिफरेंट प्रोविंसेस, जो कि आगे डिटेल में आएगा. सो एज कंपेयर टू हेपेटाइटिस सी अगर हम देखें तो वो ज़्यादा है हेपेटाइटिस बी के. तो इसकी जो प्रेवलेंस है दैट इज अराउंड 2 to 4%. नेक्स्ट प्लीज. जो इंसिडेंट्स है, न्यू केसेस जो हैं, वो भी तकरीबन हमारा जो खिता है उसमें तकरीबन वो भी इंटरमीडिएट जोन में ही है. और लकीली इसकी जो
इंसिडेंस है वो बढ़ नहीं रहा, इट इज ऑलमोस्ट सेम लाइक इफ वी कैन सी लाइक 10-20 years ago. जी प्लीज नेक्स्ट उजैर. अगर हम देखें पाकिस्तान में हेपेटाइटिस बी और सी की प्रेवलेंस को, तो क्योंकि ये दोनों वायरसेस बहुत अहम है इस हवाले से कि लिवर डिजीज जो हमारे यहाँ है उसका एक ह्यूज बर्डन है, जिसमें सी का बर्डन ऑब्वियसली ज़्यादा है, बी का जो है उसकी निस्बत कम है. इट लाइज बिटवीन 2.5 to 5.3% के दरमियान में. और जो हेपेटाइटिस सी है वो डेफिनेटली ज़्यादा है, अराउंड 4.8 to 8%. जी नेक्स्ट प्लीज़. तो अगर यहाँ पे हम देखें तो कुछ जो है पंजाब और सिंध में इसकी तकरीबन जो प्रेवलेंस है वो 2.4 2.5 है, जबकि बलूचिस्तान में इसकी प्रेवलेंस ज़्यादा है, 4.3 है, और KPK में इसी तरह 1.3 है. ऑन एवरेज इट रेंजेस बिटवीन 2 to 4%. जी नेक्स्ट प्लीज. अच्छा, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका जो है वो फैलाव किस तरह होता है, स्प्रेड किस तरह होता है, ताकि हम उससे बच सकें और अपनी जो हमारी पॉपुलेशन है उसे अवेयरनेस दे सकें कि आपने बचना किस तरह है. जी नेक्स्ट प्लीज. वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें तो इसका जो स्प्रेड सबसे कॉमन अभी तक है पूरी दुनिया में वो है वर्टिकल ट्रांसमिशन, यानी कि मदर टू चाइल्ड जो ट्रांसमिशन है वो अभी तक सबसे ज़्यादा है. और उसमें जो है वो डिपेंड करता होता है वायरल लोड के ऊपर आमतौर पे. और इसके अलावा अगर कोई इन्फेक्शन हो, इसके अलावा जैसे रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन है अगर वो अर्ली होता है, या इसके अलावा कोई जो प्रोसीजर किए जाते हैं जैसे एमनियोसेंटेसिस वगैरह, उसमें सबसे ज़्यादा होता है. और इसमें सबसे अहम बात यहाँ पे ये भी है कि ये जो मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन है इट इज़ प्रिवेंटेबल, क्योंकि हमारे पास इफेक्टिव मेडिकेशंस भी है, अगर ज़रूरत हो तो हम वो देते हैं. और उसके बाद एक्टिव और पैसिव वैक्सीनेशन अवेलेबल है जो कि बेबी को एट बर्थ जो है वो दी जाती है. जी नेक्स्ट प्लीज़. इसके बाद हमारे यहाँ जो दूसरा बड़ा अहम एक ज़रिया है वो है ये जो इंजेक्शन्स इस्तेमाल होते हैं. और हमारा अलमिया ये है कि हम हमारे कुछ मतलब ये इस तरह की ज़हनियत भी है कि जी इंजेक्शन लगेगा तो हम ठीक होंगे, और हम अक्सर तकाजा करते हैं कि जिन्हें इंजेक्शन ही चाहिए हमें. और इसी वजह से अगर हम दुनिया में देखें तो ऑन एवरेज जो है एक सेफ लिमिट 3 to 4 इंजेक्शन्स पर ईयर होता है, जो कि हमारे यहाँ तकरीबन 13 से 14 इंजेक्शन्स पर ईयर बनता है यहाँ पे, हमारे जो यहाँ पे है. और इसमें बहुत ज़्यादा जो है रोल इसका है कि इसकी वजह से भी जो है ये हेपेटाइटिस जो है वो फैल रहा है हमारे यहाँ. जी नेक्स्ट प्लीज. ब्लड प्रोडक्ट्स जो हैं वो उसमें भी बहुत जगह अच्छी जो हॉस्पिटल्स वगैरह हैं सेटअप हैं, वहाँ पे चेक किया जाता है हेपेटाइटिस का, HIV का, सिफिलिस का. लेकिन फिर भी बहुत सारी जगहों पे शायद उतना अच्छा चेक नहीं होता. और ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट जरिया है. बहुत सारे मरीज जो क्रिटिकली इल होते हैं, सिक होते हैं ज़्यादा, या वो लोग जो थैलासीमिया के बच्चे हैं जैसे, या और इस तरह के जो कोआगुलेशन डिसऑर्डर वाले हैं, जिन्हें ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट्स लगती हैं, या जो हीमोलाइटिक एनीमियाज के बच्चे हैं या एडल्ट्स हैं, उनमें अक्सर जो है वो ये भी फैलाव का एक जरिया बनता है. जी नेक्स्ट प्लीज. IV ड्रग यूजेज जो है उसकी भी एक बहुत बड़ी जो है ना वो हमारे यहाँ जो है ना एक जरिया है इसके फैलाव का. और क्योंकि ये ऑब्वियसली कम्युनिटी से लोग हैं और वो फिर जाके अपने घर में और उसके फैलाव का बायस बनते हैं. और इसमें जो है ना सिर्फ हेपेटाइटिस बी बल्कि C और HIV का फैलाव भी इसके जरिए बहुत ज़्यादा होता है. जी नेक्स्ट प्लीज. ये जो पिक्चर नज़र आ रही है ये भी हमारे यहाँ बहुत कॉमन है कि मतलब डेंटल ट्रीटमेंट इस तरह का कराना, या जो बार्बर शॉप्स हैं और वो भी एक बहुत ज़रिया इस चीज़ का बन रहे हैं. तो अगर किसी ने डेंटल ट्रीटमेंट कराना है या कोई भी सर्जरी वगैरह करवानी है तो मुस्तनद जगह से करवानी चाहिए, जहाँ पे जो है वो स्टराइजेशन का ख्याल रखा जाता है. और इसी तरह नया ब्लेड रेजर हर दफ़ा इस्तेमाल करना चाहिए वाइल जब आप जाएं शेव के लिए. और बेहतर तो ये है कि बल्कि अपनी जो आपकी बार्बर किट है वो आपकी अपनी हो और वो लेके जाएं साथ. जी नेक्स्ट प्लीज. नहीं, इससे इससे ऊपर एक और स्लाइड है ऊपर वाली. यस जी.
अच्छा, टैटू बनवाना और नाम लिखवाना हमारे यहाँ ये बड़ा कॉमन है। नाक और कान छिदवाना जो है ये भी हमारे कस्टम में बहुत ज़्यादा शामिल है, इधर कल्चर का हिस्सा है। तो ये भी इसके फैलाव का एक बायस बनता है, क्योंकि आमतौर पे लोग जो ये कर रहे होते हैं उन्हें इस चीज़ का एहसास नहीं होता कि स्टरलाइजेशन क्या है और कैसे इन नीडल्स को पाक करना है इन्फेक्शन से। तो ये भी एक बड़ा सोर्स है और इनसे भी ऑब्वियसली बचना चाहिए। और अगर ये इस तरह का कोई चीज़ होती है तो उसको डेफिनेटली उस जगह से करना चाहिए जहाँ पे उसकी स्टरलाइजेशन जो है वो देखी जाती है और की जाती है। जी नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, ये बहुत अहम चीज़ है कि अक्सर क्या होता है कि जो घर में जैसे फैमिली में एक पेशेंट है और उससे क्या होता है कि जो फैलाव है वो बहुत ज़्यादा होता है कि अगर इस तरह की चीज़ें जिनके ऊपर ब्लड लग सकता है, जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं, चाहे वो टूथ ब्रश है या मिसवाक है, नेल कटर है, टॉवल है, रेज़र है, इस पे ब्लड जो है वो जब ड्राई हो जाता है, इवन उसमें भी वायरस जो है वो सर्वाइव करता है और वो आगे फैलाव का बायस बनता है। तो अगर कभी किसी पेशेंट को जब ब्लड लगता है, और चूंकि हमारे यहाँ बहुत सारे मरीज हैं जिनको पता ही नहीं है, बल्कि मेजॉरिटी को पता नहीं है वायरस अंदर होता है, तो एहतियात हमेशा यही हो कि ये सारी चीज़ें अलग होनी चाहिए सबकी, और इसको शेयर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कभी किसी को कट लगता है, कोई खून निकलता है, तो उसे बेयर हैंड जो है वो नहीं उसको हाथ लगाना चाहिए, और हमेशा ग्लव्स वगैरह पहन के उस चीज़ को करना चाहिए ताकि इसके फैलाव से हम इस तरीके से ही बच सकें। जी नेक्स्ट प्लीज। डायलिसिस में वैसे तो असूली तौर पे चूंकि उसमें चीज़ें डिस्पोजेबल यूज़ हो रही होती हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे जो एनवायरनमेंट है, जो लोग उसको हैंडल कर रहे होते हैं, और इसमें अक्सर जो है वो ये हो जाता है। इसमें अभी रिसेंटली मैंने बहुत सारे मरीज देखे हैं जो डायलिसिस वाले समहाउ किसी सेंटर से जो है ना वो इस तरह हो रहा था। सो ये अक्सर फैलाव का बायस जो ये भी बनता है, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। और वहाँ पे इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम का जो एसओपीज होते हैं उसके लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे फॉलो किए जाएं। और नीडल स्टिक इंजरी में भी हेपेटाइटिस बी इज दी मोस्ट कॉमन वायरस जो कि स्प्रेड होता है। अगर हम देखें हेपेटाइटिस सी और HIV उसके निस्बत बहुत कम है, और ये कम अज़ कम अराउंड जो है इसकी वो स्प्रेड की शरह तकरीबन 30% होती है नीडल स्टिक इंजरी पे। तो ख़ास तौर पे हमारे लिए ये अहम चीज़ है, क्योंकि जो लोग हैंडल करते हैं, हम लोग मेडिकल के हैं, हमारे जो स्टाफ है, हमारा जो पैरामेडिकल स्टाफ है, उन सब की वैक्सीनेशन को इंश्योर करना चाहिए ताकि जो है स्प्रेड जो है हम इसके थ्रू कम अज़ कम ना हो, एंड वी शुड गेट प्रोटेक्टेड। जी नेक्स्ट प्लीज। इसके बाद जो जिनसी बहिरारवी है, इसमें इसका बहुत बड़ा रोल है। इससे भी ये जो है वो स्प्रेड हो सकता है, और होमोसेक्सुअलिटी के जरिए भी इसका स्प्रेड जो है बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सी, अगर हम देखें तो। जी नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किस चीज़ से इसका स्प्रेड नहीं होता। मतलब इकट्ठे बैठने से, रहने से, खाना खाने से, छोटे बच्चों को उठाने से, प्यार करने से, गोद में लेने से, या मतलब जिस तरह खांसी से, छींकने से, इन चीज़ों से ये नहीं फैलता। तो इस तरह की जो खामखा एक बर्तन अलग करना या मना करना लोगों को घुलने मिलने से, उससे ये नहीं फैलता, और वो इनकरेज करना चाहिए और वो उसके बारे में अवेयरनेस लोगों को देनी चाहिए। जी नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, ब्रेस्ट फीडिंग से अदरवाइज ये नहीं फैलता। पॉजिटिव हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव मदर कैन ब्रेस्ट फीड हर चाइल्ड, लेकिन अगर ऑब्वियस कोई वाजे तौर पे कोई जख्म है, कोई क्रैक है, खास तौर पे ब्रेस्ट के ऊपर, निपल के ऊपर, तो उससे ऑब्वियसली जो है वो ये फैल सकता है। तो उस कंडीशन में जो है वो एहतियात करनी चाहिए। जी नेक्स्ट प्लीज। जी नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, हेपेटाइटिस बी और सी में फर्क ये है कि हेपेटाइटिस बी इज मोर विरुलेंट मदर टू चाइल्ड। जैसे हमने देखा ट्रांसमिशन भी इसकी बहुत ज़्यादा है, और वो HBe एंटीजन पॉजिटिव जो पेशेंट हैं उनमें ऑब्वियसली वो ज़्यादा होता है। और उसमें तो अगर हम देखें तो ट्रांसमिशन रेट 70 to 90%, और अगर HBe एंटीजन नेगेटिव है तो फिर 10 to 40% जो है वो रिस्क होता है। और उसमें हम फर्दर देखते हैं कि जो वायरल जो है लोड कितना है। इसी तरह सेक्सुअल ट्रांसमिशन में भी, जैसे मैंने भी जिक्र किया, ये ज़्यादा फैलता है, और नीडल स्टिक इंजरी में भी इसका जो फैलाव है वो ज़्यादा है। जी नेक्स्ट प्लीज। नेचुरल हिस्ट्री में इसमें सबसे जो अहम चीज़ है वो है एज, कि किस एज पे जो है वो एक्वायर हुआ है। और इसमें अगेन ज़्यादा इंपॉर्टेंस आ जाती है मदर टू चाइल्ड
ट्रांसमिशन की। तो उसमें अब अहम बात यह है कि चूंकि हमारे पास इसकी प्रिवेंशन के लिए मेडिसिन भी है, इसके लिए वेरी इफेक्टिव वैक्सीन जो है वो भी अवेलेबल है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर प्रेग्नेंट लेडी जिसको रिकमेंडेड है कि उसमें हेपेटाइटिस बी और सी का टेस्ट लाजमी किया जाए, ताकि अगर वो पॉजिटिव है तो उसको हमने फर्दर देखना होता है कि आया ट्रीटमेंट की जरूरत है, या अगर वायरल लोड ज्यादा है इस पे फर्दर जो है वो लेक्चर्स होंगे कि कब प्रिवेंशन को कैसे वो करना है। तो उसमें हमारे पास दवाइयाँ भी हैं, हमारे पास फिर वैक्सीन है। तो अगर आप देखें कि अगर पेरीनेटल पीरियड में इन्फेक्शन होता है तो 90% चांसेस होते हैं कि ये क्रॉनिक इन्फेक्शन में आगे जाएगा। और इसी तरह अगर आप एडल्ट्स में देखें तो उसमें 95% चांसेस ये हैं कि वो रिकवर हो जाएगा। लेस देन 5% में क्या होता है कि जो है आगे क्रॉनिक इन्फेक्शन में जाता है। सो इसलिए जो स्क्रीनिंग है खासतौर पे प्रेग्नेंट लेडी में वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, बाकी इसमें जो है इस फैक्टर्स जो हैं उसमें डिफरेंट होते हैं कि जो है होस्ट फैक्टर हैं, कुछ हेपेटाइटिस बी के हैं जीनोटाइप वगैरह। उसमें कुछ जीनोटाइप्स ऐसी हैं जो ज़्यादा विरुलेंट हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम काज करती हैं, लेकिन ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट मतलब उस तरह नहीं है कि आप हर किसी की हम जीनोटाइप चेक नहीं करते हैं, बिकॉज जो मेडिसिन हमारे पास है दैट इज पैन जीनोटिपिक और वो इक्वली इफेक्टिव है। बट दीज आर डिफरेंट फैक्टर्स जो कि इसकी नेचुरल हिस्ट्री पे ऑब्वियसली वो इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई इन्फेक्शन है हेपेटाइटिस सी के साथ, बी के साथ, HIV के साथ, तो ऑब्वियसली, और या अगर कोई अदर जो है उसकी लिवर डिजीज है तो ऑब्वियसली जो प्रोग्रेशन है वो ज्यादा होती है। जी नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, हेपेटाइटिस बी जो है इसमें थोड़ा सा अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स है। इसमें कि किस स्टेज पे पेशेंट है। हेपेटाइटिस सी की तरह नहीं है कि आपने देखा उसका वायरल लोड पॉजिटिव आ गया तो यू जस्ट गो फॉर ट्रीटमेंट। इसमें हमने देखना होता है कि ये किस फेज में है। तो इसमें आमतौर पे जब हम चेक करते हैं, हमारे पास पेशेंट आता है तो उसके लिए जब HbSAg पॉजिटिव होता है और उसके बाद हमारे पास आता है तो फिर हम उसका वर्कअप करते हैं और उसमें देखते हैं कि पेशेंट जो है वो कहाँ फॉल कर रहा है और कहाँ कहाँ हमने उसको फर्दर देखना होता है कि ट्रीटमेंट देना है कि नहीं है। इसमें बहुत डिटेल ऑब्वियसली हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में आएगी कि ट्रीटमेंट जब क्या जो ट्रीटमेंट के ऊपर लेक्चर होगा तो उसमें वो फर्दर सारी डिटेल होगी कि कब हमने ट्रीट करना है और कब नहीं करना है। लेकिन एटलीस्ट हमें ये पता होना चाहिए कि इसके डिफरेंट फेजेस होते हैं। बेसिकली इसको जो अब लेटेस्ट जो इसका नॉमेनक्लेचर है वो थोड़ा चेंज हुआ है और वो उसमें दो ब्रॉड कैटेगरीज हो गई हैं कि HbE एंटीजन पॉजिटिव जो है वो फेज देखना है हमने, और एक HbE एंटीजन नेगेटिव होता है। तो उसमें जो है वो एक जो इनिशियल है वो एक को हम जब जिसमें वायरस तो ज़्यादा होता है लेकिन वो लिवर को डैमेज नहीं कर रहा होता, ALT लेवल नॉर्मल होता है, लिवर के ऊपर अगर हम हिस्टोलॉजी में देखें तो कोई ज़्यादा हमें नहीं मिलती, इन्फ्लामेशन नहीं मिलती। तो ये इनिशियली जो है इसको हम कहते होते हैं हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन। और जिसमें एक्टिव होता है वायरस और डैमेज कर रहा होता है, ALT लेवल ज़्यादा होते हैं और जिगर को अगर बायोप्सी की जाए तो उस पर हमें इन्फ्लामेशन मिलती है एक्टिव, उसे हम कहते हैं हेपेटाइटिस बी एक्टिव हेपेटाइटिस। तो उसमें फिर हमने ट्रीटमेंट देना होता है। तो इसकी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि ये ऑब्वियसली हमने आगे चल के इस पे फर्दर लेक्चर्स हैं और वो डिटेल से उसमें हम देखेंगे। जी नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, जिस तरह हेपेटाइटिस सी है आमतौर पे जब वायरस आता है तो वो इनिशियली जो है वो कुछ केसेस में एज ए एक्यूट हेपेटाइटिस आता है, यानी कि पेशेंट को जो सिम्टम आती हैं कि उसको राइट साइड पे पेट में दर्द हो सकता है, उसे वॉमिटिंग हो सकती है, उसे मतली हो सकती है, उसकी भूख कम हो जाती है, उसको हल्का बुखार हो सकता है, जिस तरह आमतौर पे हम देखते हैं एक्यूट हेपेटाइटिस A या E में। तो कुछ केसेस में एक्यूट हेपेटाइटिस की फॉर्म में भी ये आ सकता है और फिर आगे चल के ये क्रॉनिक में जाता है। समटाइम्स एक्यूट की जो है वो हमारे पास सिम्टम्स नहीं आती और डायरेक्टली जो है पेशेंट क्रॉनिक में चला जाता है और इनिशियल फेज जो है वो एसिम्प्टोमेटिक रहता है। तो जब क्रॉनिक में जाता है तो उसके बाद जो है ओवर ए पीरियड ऑफ ईयर्स क्या होता है कि पेशेंट जो है वो आगे उसमें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सिरोसिस डेवलप होती है। और इसमें एक चीज़ ये भी है कि जिस तरह हेपेटाइटिस सी है या कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनमें जब सिरोसिस हो जाता है तो फिर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा का रिस्क बढ़ता है। बट हेपेटाइटिस बी में ये होता है कि विदाउट सिरोसिस भी इसमें जो है वो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा का रिस्क लाइक 5 to 10% केसेस में होता है। और जब सिरोसिस डेवलप हो जाता है ऑब्वियसली
फिर जो है वो क्या है कि बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता है हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा का भी, और फिर फर्दर हेपेटिक डीकम्पेंसेशन का भी। तो इसमें जब ट्रीटमेंट हम देते हैं तो ऑब्वियसली उसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशन रेट है वो स्लो डाउन हो सकता है। जी नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, अब आते हैं स्क्रीनिंग के ऊपर, जो लास्ट पार्ट है। बेसिकली स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह के हेपेटाइटिस सी है या हेपेटाइटिस बी, दोनों में इनकी जरूरी नहीं है कि कोई एक ऐसी सिम्टम हो जो आए और वो उसके साथ मरीज आए और आप डॉक्टर भी फौरन देख के अंदाजा लगा ले इसको जी हेपेटाइटिस है। तो इसमें सबसे अहम चीज अब ये है कि स्क्रीनिंग जो है वो होनी चाहिए, उसी से ही पता चलेगा, उसी से ही आगे हम ट्रीटमेंट देंगे। और फॉर्चुनेटली ट्रीटमेंट हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन चूंकि सिम्टम्स नहीं है इसकी स्पेसिफिक, तो इस वक्त एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि जिन्हें वायरस तो है, जिन प्रॉब्लम है, बट उन्हें क्या है कि उन्हें पता ही नहीं है। तो हमने सेंसिटाइज ये करना है कि लोगों को कि आप स्क्रीनिंग करवाएं ताकि इस चीज़ का पता चले, और आगे चल के लिवर डैमेज और एक बहुत बड़ी जो एक डिजीज बर्डन है हेपेटाइटिस सॉरी हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा का, डीकम्पनसेटेड लिवर डिजीज का, वो कम हो सके। अब हमने करना कैसे है? स्क्रीनिंग में हमारे पास सबसे सिंपल टेस्ट है, वो सरफेस एंटीजन है, HbsAg है। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसमें फर्दर भी साथ में देख सकते हैं कि होता क्या है एक्चुअली के सरफेस एंटीजन कुछ अरसे बाद जो है वो डिसअपियर हो जाता है और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती हैं। तो बीच में एक विंडो पीरियड आता है। अगर आप स्ट्रांगली सस्पेक्ट कर रहे हैं किसी में थोड़ा सा, जैसे आपको लग रहा है कि जी LFTs डिरेंज है, तो ये हो सकता है हेपेटाइटिस बी हो, अगर रिस्क फैक्टर हो, तो फिर आप साथ में विंडो पीरियड वाला जो टाइम है उसको भी देखते हुए कि कहीं ये विंडो पीरियड में ना हो, तो आप anti-HBC यानी कि कोर एंटीबॉडीज कराते हैं। रीसेंट इन्फेक्शन होगा तो ये IgM टाइप पॉजिटिव होगी, अगर क्रॉनिक में चला गया है तो फिर वो IgG टाइप पॉजिटिव होगी। और इसी तरह जो है वो anti-HBs भी आप समटाइम्स कराते हैं हम, कि वो भी ये शो करती है कि इसको इन्फेक्शन तो हुआ था बट अब ये रिकवर हो चुका है। तो नेक्स्ट जो है उसमें हम अब ये देखना है कि हमने किसको स्क्रीन करना है। जी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, अब जो CDC की रिकमेंडेशन है, जो अमेरिकन इदारा है इन्फेक्शंस के हवाले से, वो ये कहते हैं कि आप उस पॉपुलेशन में जनरली आप वो स्क्रीनिंग करें जहां पे ओवरऑल प्रेवलेंस 2 से लेके 5 के दरमियान हो। तो अब हमारे यहाँ तकरीबन 2.5 और कुछ एरियाज में इससे भी ज़्यादा है। तो इसमें ये है कि हम हमारी जनरल पॉपुलेशन जो है उन्हें भी अपना टेस्ट कराना चाहिए। तो इसमें जो है वो एक तो ये भी हो सकता है कि जैसे हमारे पास पेशेंट आते हैं विद डिफरेंट इश्यूज, तो हम उन्हें सेंसिटाइज करें और उन्हें थोड़ा सा गाइड करें और अवेयरनेस दें कि हेपेटाइटिस बी जो है और सी जो है ये हमारे यहाँ बहुत बड़ा एक मसला है, तो आप टेस्ट जो है उसके करा लें। तो ये भी एक अच्छा आइडिया है। इसके अलावा हमें ऑब्वियसली हर उस पे जो है जो भी फॉरम है उस पे ये करना चाहिए, रेज करना चाहिए इस वाइस को, और लोगों को एजुकेट करना चाहिए कि वो स्क्रीनिंग करवाएं ताकि उनका तो उसका पता चल सके। और बेहतर तो ये है बल्कि कि जो एग्जिस्टिंग हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जैसे डिफरेंट क्लिनिक्स हैं और जैसे HIV क्लिनिक है या TB क्लिनिक्स होते हैं, उन्हें भी यूटिलाइज करना चाहिए कि वो लोगों की मैस स्क्रीनिंग जो है वो करें। जी नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, स्पेसिफिक जो है रिकमेंडेशन जिनमें लाजमी तौर पे स्क्रीनिंग होनी चाहिए, वो तो डेफिनेटली अगर किसी में जैसे घर में अक्सर जो है वो एक पर्सन है जिसको प्रॉब्लम है और हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट है, या मियाँ बीवी में से किसी को है, तो डेफिनेटली दूसरा जो पर्सन है उसको लाजमी उसका टेस्ट होना चाहिए। इसी तरह जो IV ड्रग जो है वो यूजर्स हैं, इसी तरह होमोसेक्सुअल मैन जो है, इसके बाद जो है वो प्रेवलेंस का जैसे मैंने जिक्र कर दिया, अगर 2% से ज़्यादा है तो भी होना चाहिए। और HIV वाला पेशेंट और प्रेग्नेंट लेडी, इनमें तो लाजमी तौर पे जो है वो होनी चाहिए, जो है स्क्रीनिंग होनी चाहिए। जी नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, इसके अलावा जो है डोनर्स जो हैं, ऑब्वियसली ये भी हम चेक करते हैं जब कोई ब्लड दे रहा हो या प्लाज्मा, या इसके अलावा ऑर्गन डोनर होते हैं। इसके अलावा जो बच्चा पैदा होता है से जो है ना, अगर मदर को पॉजिटिव था और उसको अभी आप कुछ भी नहीं दिया वैक्सीन वगैरह, और बाद में पता चला है, या उस वक्त वो अवेलेबल नहीं थी वैक्सीन, या जैसे होता है
पेरीफ्रीज में समटाइम्स या इवन सिटी में भी मिस हो जाती है, तो उसके बाद डेफिनेटली उनमें देखना चाहिए कि वायरस जो है वो मौजूद है कि नहीं। इसके अलावा जो लोग डायलिसिस पे रहते हैं, रेगुलर मतलब डायलिसिस होते हैं, उनको देखना चाहिए। इसके अलावा वो लोग जो जिन्हें इम्यूनोसप्रेसिव या साइटोटॉक्सिक थेरेपी दे रहे हैं हम किसी भी और डिजीज की वजह से, तो उसमें भी देखना चाहिए, बिकॉज समटाइम्स अगर वायरस जो है वो मौजूद है तो वो बहुत ज़्यादा रीएक्टिवेशन के चांसेस होते हैं। तो इसी तरह बाकी जो अगर अब किसी को एक्सीडेंटली अगर किसी का प्रिक हो गया है नीडल तो पेशेंट का स्टेटस भी देखना होता है। और अगर किसी को अनएक्सप्लेन्ड अगर आ रहा है, लिवर फंक्शन टेस्ट ऊपर है, बड़े हुए हैं और उसकी कोई और वजह में सामने नहीं आ रही, तो उसमें भी फिर जो है वो इसका टेस्ट लाजमी होता है। तो ये स्क्रीनिंग के लिए जो है वो रिकमेंडेशन है। हमारे यहाँ चूंकि 2% से ऊपर है, तो आई गेस वेरी सब जो है एक दफ़ा जो एटलीस्ट वंस सबको जो है वो टेस्ट इसका कराना चाहिए। जी थैंक यू सो मच। जी अब ओवर टू असद साहब, कोई क्वेश्चन वगैरह या कमेंट्स के लिए। थैंक यू वेरी मच इकराम, आपने काफी अच्छा कवर कर लिया, जो स्पेशली जो एलोकेटेड टॉपिक से कुछ चीजें हैं जो मैं थोड़ा सा करके उसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर एक कुछ चैट में भी हैं, मैं उसका भी आता हूँ। एक तो आप ये ज़हन में रखें कि पंजाब हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम फ्री स्क्रीनिंग ऑफर करता है, फ्री पीसीआर ऑफर करता है, और हेपेटाइटिस बी का भी फ्री ट्रीटमेंट ऑफर करता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके इर्द गिर्द जो भी मैं पंजाब के बारे में और इवन सिंध में भी ये काफ़ी है जो हमारे मेजर हैं, और बल्कि सिंध थोड़ा सा एक स्टेप आगे भी है क्योंकि वो बर्थ डोज वैक्सीनेशन भी कर रहे हैं, हमारे यहाँ थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है। और एक हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन होती है, अगर माँ को हेपेटाइटिस बी है तो बच्चे को फौरी प्रोटेक्शन के लिए एक्टिव और पैसिव इम्यूनाइजेशन की जाती है, और वो भी ये चीज़ें अवेलेबल हैं। ये आगे हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे, लेकिन सिर्फ अभी भी हम बहुत ज़्यादा फेस करते हैं, और आगे चल के जब हम इसकी इंटरप्रिटेशन और टेस्टों पे बात करेंगे तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम आइडेंटिफाई कर सकें वो लोग जिनको इलाज की ज़रूरत है, क्योंकि इलाज इफेक्टिवली मौजूद है। इलाज के साथ हम लिवर सिरोसिस से बचना चाहते हैं और लिवर कैंसर से बचना चाहते हैं। ये याद रखें, हेपेटाइटिस बी को लिवर कैंसर बनाते हुए लिवर सिरोसिस करना जरूरी नहीं है। हमारे पास बहुत सारे मरीज आते हैं जिनके हेल्दी लिवर्स होते हैं लेकिन उसमें ट्यूमर आ चुका होता है। और एक और पॉइंट जो डॉक्टर इकराम ने अपनी स्लाइड में भी कहा है कि अगर घर में एक शख्स को हेपेटाइटिस बी है तो बाकी तमाम घर वाले स्क्रीनिंग कराएं, क्योंकि एट टाइम्स यू कम अक्रॉस कि बासकन माँ को निकला होता है और वो बच्चों में भी आया होता है, तो दो तीन आपको सिबलिंग्स में मिल जाते हैं पेशेंट। तो जस्ट आप उसको उनको स्क्रीन कराएं, और जो लोग नेगेटिव हैं उनको वैक्सीन कराएं। और वैक्सीनेशन जो है वो भी पंजाब के जो हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम है उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो और ये काफी इफेक्टिव है, आई मीन, और बहुत ज्यादा सेंटर्स हैं और फ्रीली अवेलेबल है वहाँ पे जो है। तो ये चंद एक मोटे पॉइंट है। इकराम, एक क्वेश्चन जो है, आपने विंडो पीरियड की बात की। विंडो पीरियड का मैं थोड़ा सा समझा दूं, जो हम विंडो पीरियड की टर्म इस्तेमाल करते हैं। एक शख्स ने, आप किसी को ब्लड की जरूरत पड़ी और उसको आपने डोनर लेके आए, जिस तरह किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या खून की उल्टियां आती हैं या ब्लड की जरूरत पड़ती है, इमरजेंसी में आप लोग लेके आते हैं, तो उनका ब्लड स्क्रीन किया जाता है। डोनर के जो टेस्ट किए जाते हैं फॉर स्क्रीनिंग ऑफ हेपेटाइटिस बी एंड सी। तो विंडो पीरियड ये है कि उस शख्स का वायरस मौजूद हो लेकिन उसका भी एक्सपोजर हुआ है और स्क्रीनिंग टेस्ट अभी पॉजिटिव नहीं आ रहा। तो इकराम, आप इस पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे ये कितना है, कितना हो सकता है, और हम इसको किस तरीके से हम सेफ गार्ड कर सकते हैं? जी इकराम।
जी जी, इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि आमतौर पे जो विंडो पीरियड लिया जाता है वो ये है कि एक पेशेंट है जिसको अभी फॉर एग्जांपल उसने एक्वायर किया हेपेटाइटिस बी कहीं से, और उसको फॉर एग्जांपल एंटीबॉडी जो इनिशियल जो उसका टेस्ट होता है जो HBsAg हम चेक करते हैं वो पॉजिटिव हुआ, मतलब वो बनती है सबसे पहले वो होती है एंटीजन जो HBsAg है। अब उसमें होता क्या है कि कुछ अरसे बाद या तो वो रिजॉल्व होने लग जाता है या वो क्रॉनिक इन्फेक्शन में आगे जा सकता है। अब अगर वो क्रॉनिक में जाता है समटाइम्स, तो क्या होता है कि वो जो है परसिस्ट करती है, जो HBsAg है वो परसिस्ट करती है फॉर ईयर्स में भी, और वो हमेशा रहती है। अच्छा, कुछ केसेस में ये होता है जैसे हमने देखा कि अगर आप एडल्ट एक बंदा जो एक्वायर करता है तो 95% चांसेस हैं कि वो खुद ही उसका जो इम्यून सिस्टम से क्लियर कर देगा। तब होता क्या है कि जब क्लियरेंस हो रही होती है तो HBsAg जो है वो गायब हो जाती है, और जो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज हैं फिर वो अपीयर होती हैं। तो वो जो दरमियान में कुछ पीरियड है जो डिले हो सकता है, इट कैन बी फ्यू वीक्स टू फ्यू मंथ्स। उस दौरान में अगर आप उस पेशेंट का ब्लड चेक करोगे तो HBsAg तो पहले ही खत्म हो गया, और HBsAg अभी डेवलप नहीं हुआ, तो उसको एक्चुअली टेक्निकली हम विंडो पीरियड कहते हैं कि उस दौरान में अगर चेक करेंगे तो आपको दोनों नेगेटिव मिलेंगे। सो उसको उसको ओवरकम करने के लिए और उसको कि वो मिस ना हो, फिर हम चेक करते हैं कोर एंटीबॉडीज जो कि बैकग्राउंड में वो लाजमी पॉजिटिव होती हैं उस दौर में, उस एरिया में, उस जो पीरियड है। तो उसको जब हम देखते हैं तो वो फिर मिस नहीं होता और उसको हम उसकी मदद से चेक कर सकते हैं। जी। अब बहुत सारी लेबोरेटरीज ने अब इनकॉर्पोरेट किया है हेपेटाइटिस बी कोर एंटीबॉडी anti-HBC टोटल। अगर ये पॉजिटिव हो तो इसका मतलब है कि पेशेंट हैज बीन एक्सपोज टू हेपेटाइटिस बी। और उसके बाद एक क्वेश्चन है अबाउट जी इकराम, ये डॉक्टर बशारत साहब का डिफरेंस बिटवीन स्क्रीनिंग बाय जस्ट पॉजिटिव एंड नेगेटिव टेस्ट एंड एलाइजा विद रिगार्ड टू ब्लड। तो क्वेश्चन ये है, एक हमारा ICT मेथड है विच इज इम्यूनो क्रोमेटोग्राफिक, ये जो यूजुअली ब्लड डॉट से होता है, और दूसरा एलाइजा का है। इकराम, इसके ऊपर आप थोड़ा सा रोशनी डालना चाहोगे? अच्छा, इसमें ऑब्वियसली जो अलाइजा की टेस्टिंग है दैट इज सुपीरियर बिकॉज उसका मेथड जो है वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन आमतौर पे वैसे जो जब जी कोई भी स्क्रीनिंग टेस्ट डिवाइस किया जाता है तो उसमें उसकी सेंसिटिविटी को हमेशा नियर टू 100% रखा जाता है कि वो पेशेंट जो है कोई मिस ना हो। उसमें फिर ये होता है कि फॉल्स पॉजिटिव ज़्यादा आ सकते हैं ऑल दो, बट वही बात है कि आम तौर पे उसमें कोई चीज़ मिस नहीं होती। सो हमेशा जब भी हम इनिशियल टेस्ट कराते होते हैं तो उसमें जब भी पेशेंट का हमारा पॉजिटिव आए तो ऑब्वियसली हमें ट्रीटमेंट से पहले उसका PCR भी करना होता है, उसकी डिफरेंट जो एंटीजेंस हैं वो भी करनी होती हैं, उसके LFTs करते हैं हम, एज अ होल सारी चीज़ें देखते हैं। तो मेरे ख्याल में इनिशियल जो स्क्रीनिंग वट एवर इज अवेलेबल एटलीस्ट इट शुड बी डन, ताकि जो है ना वो हम एटलीस्ट उसको डिटेक्ट कर सकें। जी, एलाइजा इज प्रेफरेबल। थोड़ा एक्सपेंसिव है और अवेलेबिलिटी का इशू आ जाता है। और जनरली जो हमारी मैस स्क्रीनिंग होती है, पॉपुलेशन स्क्रीनिंग होती है, उसमें ICT ही होता है, क्योंकि ICT जो है ये पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट है, उसी वक्त रिपोर्ट आ जाती है और आप उसको गाइड कर सकते हैं। नो डाउट इसमें फॉल्स नेगेटिव्स भी आते हैं, तो जो हम जनरली पसंद नहीं करते, लेकिन हमें कॉस्ट को भी देखना होता है। जो इसकी किट है 25-30 रुपए की मिल जाती है, और एलाइजा जो है मेरे ख्याल में कम से कम भी 500-800 रुपए का होता है, डिपेंड करता है। प्राइवेट लैब्स तो कुछ काफी एक्सपेंसिव करती हैं। और उसके बाद हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन के बारे में और हेपेटाइटिस बी टाइटर्स का सवाल है। देखें, आपका वैक्सीनेशन सबकी होनी चाहिए और यूनिवर्सली होनी चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जहां तक टाइटर्स को चेक करने और बूस्टर का ताल्लुक है, टाइटर्स आर गुड, जो कि कुछ सिनारियोज में हम जरूर चेक करते हैं। आम पॉपुलेशन की में वैक्सीनेशन जब आप करते हैं तो यूजुअली आप टाइटर्स चेक नहीं करते। लेकिन मेडिकल में जो जो लोग रिस्क प्रोन हैं, जिस तरह हम लोग काम करते हैं नीडल स्टिक इंजरीज और बाकी चीजों के साथ, उसमें हम टाइटर्स को देखना चाहते हैं। और अगर टाइटर्स जो हैं दे आर फॉलिंग, तो तब बूस्टर करके दोबारा देखा जा सकता है टाइटर को, लेकिन बशर्ते कि पहली आपने वैक्सीनेशन 0, 1 और 6 या 0, 1 और 2 के ऊपर कंप्लीट की है। तो वहां पे आपको जो है
इसी तरह न्यूली मैरिड कपल्स में अगर किसी को पता हो तो यूजुअली हम ये एडवाइस करते हैं कि अगर एक पार्टनर को है तो दूसरा पार्टनर अपनी वैक्सीन कराए, और बिफोर हैविंग जो नो जो 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 रिलेशनशिप्स हैं, इंटीमेट सेक्सुअल रिलेशनशिप्स हैं, उससे पहले अगर वो उसके टाइटर्स हो जाए तो वो बेहतर होता है कि वो उसके प्रोटेक्शन को एक आपको तसल्ली होती है कि इट्स प्रॉपर्ली प्रोटेक्टेड। उसके बाद बूस्टर का फिर सवाल है, मैंने इसको देखिए, आम पॉपुलेशन में हम टाइटर्स को रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग जो पैरामेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, हमें 5 साल बाद 10 साल बाद कोई हर्ज नहीं है कि आप चेक कर लें और यू डू फाइंड कि वो अगर है तो फिर बूस्टर का केस जो है वो बन सकता है। और देन देयर इज अनदर क्वेश्चन इकराम, difference between hepatitis B E antigen and hepatitis B core antigen। अच्छा, जो HBE एंटीजन है वो आम तौर पे जो है वो की जाती है, और दैट इज बेसिकली वन ऑफ द वेरी इम्पॉर्टेंट मार्कर के। अक्सर मैं देखता हूँ कि कुछ लोगों ने हेपेटाइटिस बी की ट्रीटमेंट शुरू की होती है और उन्होंने HBE एंटीजन कराया नहीं होता। वैसे तो जब आप देखते हैं तो HBE एंटीजन जो है बेसिकली उसकी इन्फेक्टिविटी कुछ है कि आपने इसकी बेस पे ट्रीटमेंट ड्यूरेशन को वो करना है, रेकमेंड करना है, क्योंकि अगर HBE एंटीजन पॉजिटिव डिजीज है उसमें आपने हमेशा देखना होता है कि उसमें डेफिनेटिव ट्रीटमेंट होती है। आप मॉनिटर करते हैं, जब इसकी सीरो कन्वर्जन हो जाती है उसके बाद आप 1 साल की कंसोलिडेशन ट्रीटमेंट देते हैं और फिर बंद कर देते हैं। और अगर HBE एंटीजन नेगेटिव डिजीज होती है तो फिर आपने उसको लंबे अरसे के लिए देना होता है। जबकि जो कोर एंटीजन है बेसिकली ये एक न्यूअर मार्कर है जो कि अब इसमें अभी तक इसकी कमर्शियली आई डोंट थिंक सो कि हमारे यहाँ अवेलेबल भी है। और इसमें तो ये चीज़ें जो अब न्यू जो ड्रग्स आ रही हैं उसमें देखा गया है, उनके जो रिसर्च के दौरान यूज़ हो रहा है कि बेसिकली हेपेटाइटिस बी, क्योंकि हमारा कोर जो DNA होता है उसके अंदर इनकारपोरेट हो जाता है, और वो इवन जो हम मेडिसिन अभी दे रहे हैं जो अभी अवेलेबल हैं वो उनसे वो उसको हम नहीं निकाल पाते और वो स्टिल अंदर रहता है। तो ये उसका सरोगेट मार्कर भी है, लेकिन इसकी अभी जो वैलिडेशन है और हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है वो अभी नहीं है। लेकिन हो सकता है फ्यूचर में इसकी ऊपर बहुत ज़्यादा जो है ना कोई आ जाए, जो अभी क्योंकि न्यूअर थेरेपीज भी बहुत सारी हैं जो पाइपलाइन में हैं, एंड मे बी सारा जो है वो एक लैंडमार्क्स जो हमारे पास जो सिनेरियो है वो शायद हो सकता है कि वो चेंज हो जाए, बट अप टिल नाउ आई डोंट थिंक सो इट इज़ अवेलेबल। बाकी असद साहब इसके बारे में ज़्यादा आपको डिटेल में बता सकते हैं कुछ। नहीं, डिटेल तो आपने जिक्र कर दिया। ये बेसिकली ये जो कोर एंटीजन वगैरह टेस्ट हैं ये कमर्शियली अभी अवेलेबल नहीं है और अभी ये गाइडलाइंस में भी इनकॉर्पोरेटेड नहीं है। इन पे बहुत सारा काम हो रहा है जो कि फ्यूचर में शायद हमें हेल्प आउट कर सके। फिलहाल जो अभी आगे टेस्ट अवेलेबल टेस्ट और उनकी इंटरप्रिटेशन के ऊपर पूरी टॉक है, तो वो डेट विल बी आंसर्ड। एक और ऊपर सवाल था कि साइलेंट कैरियर्स कैन स्प्रेड इन्फेक्शन। यस, दे कैन। बी का प्रॉब्लम ये याद रखें, हेपेटाइटिस बी एक DNA वायरस है, ये सेल्स के अंदर जाके बैठा होता है। इसीलिए हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन पॉजिटिव अगर हो और DNA नेगेटिव हो वो भी ब्लड नहीं दे सकता। तो और इसके ऊपर भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन अगर सरफेस एंटीजन पॉजिटिव पेशेंट है तो वो इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकता है और वो ब्लड नहीं दे सकता। ठीक है। उसके बाद एक और सवाल है कि व्हाट कुड बी द डेफिनेटिव और सिग्निफिकेंट साइंस और सिम्टम्स ऑफ हेपेटाइटिस बी। इसके क्लिनिकल फीचर्स के ऊपर अभी बात होगी तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। इफ द स्क्रीनिंग इज पॉजिटिव, इज इट मैंडेटरी टू चेक इट इज बाय एलाइजा। मैं क्विकली आंसर कर देता हूँ, जरूरी नहीं है। यूजुअली व्हाट वी डू इज कि अगर स्क्रीनिंग पॉजिटिव है वी जस्ट गो फॉर DNA। तो आप हेपेटाइटिस बी DNA बाय PCR करवाएं। और मैं यहाँ पे फिर आपको याद कराता चलूं कि देर इज नो प्लेस फॉर क्वालिटेटिव DNA। हमेशा क्वांटिटेटिव DNA होगा। ये बाय PCR होता है। और कोई आप लिखें भी मत क्वालिटेटिव, क्योंकि आपको हर सूरत आगे चल के वायरल लोड चाहिए होगा फर्दर ट्रीटमेंट को प्लान करने के लिए।
तो आई वुड रिकमेंड कि अगर आपको किट के ऊपर किट मेथड पे अगर पॉजिटिव आ गया है, रादर गोइंग फॉर अलाइजा, आप डीएनए कराएं। अगर आपका किट मेथड पे नेगेटिव है और आपका क्लिनिकल सस्पिशन है, यार इसको लगता है कोई गलती ना हो रही हो, तो फिर हम उसको अलाइजा। और जो कॉमन सिनारियो होता है हमारे क्लिनिक्स में वो ये होता है कि अगर एएलटी या एसजीपीटी थोड़ा सा ज्यादा है, आपने किट मेथड पे स्क्रीनिंग कराई हुई है बी और सी की, जो अक्सर आप क्लिनिक में देखते होंगे, तो तब मैं एक दफा आगे चलने से पहले अलाइजा से जरूर करवा लेता हूँ, जस्ट टू मेक श्योर कि वहां पे कोई गलती नहीं हो रही। जी, एनी अदर क्वेश्चन? वी स्टिल हैव अबाउट 4-5 मिनट्स। जो हेपेटाइटिस बी है उसकी इन्फेक्टिविटी सी से ज्यादा है, तो जो नीडल स्टिक इंजरीज हैं, बी वेरी केयरफुल। ऑफ कोर्स ये डिपेंड करता है कि उस जिस जिस बंदे की सुई चुभी है आपको, उसका अपना वायरल लोड कितना था। एक और चीज ध्यान में रखें कि हेपेटाइटिस बी का वायरस सरफेस पे ज्यादा देर सरवाइव करता है। इफ आई कैन फाइंड इट आउट, लेकिन ये चंद वीक्स सरवाइव कर सकता है रूम टेम्परेचर के ऊपर। जिस तरह आपको ब्लड गिरा, कोई ऐसा कोई ब्लड प्रोडक्ट या जिस तरह हम काम करते हैं लेबोरेटरीज वगैरह में, वहां पे इस तरह का ब्लड गिरा तो वो बहुत देर। सिमिलरली इसीलिए ये जो नीडल्स हैं जो रिसाइकल होती हैं, जो लोग कूड़े में फेंक देते हैं और वहां से उठाई जाती हैं और धो के इस्तेमाल हो रही होती हैं, तो वहां पे काफी देर तक ये इसको इतनी जल्दी खत्म नहीं होता। तो इसको भी जरा ज़हन में रखें, जो है इसका। और जहां तक ताल्लुक है जो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस के ऊपर हम आपको समझाएंगे, ये अवेलेबल, ये होता है और इसके ऊपर आगे टॉक बात होगी। और सरफेस के ऊपर मैंने बताया है कि मैंने जहाँ तक, इफ आई कैन रिमेंबर इट करेक्टली, इट कैन सर्वाइव फॉर फ्यू वीक्स, अप टू 4 to 6 वीक्स रूम टेम्परेचर के ऊपर। हेपेटाइटिस बी सर्वाइव कर सकता है। हेपेटाइटिस सी इज फ्यू डेज, 3 to 5 days और समथिंग। इस जो जो आपको प्रैक्टिसेस हैं, आई थिंक जो आई एग्री विद इट, वो दे शुड बी फॉलोड। आपकी जो इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसीज हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स हैं, एंड प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द हॉस्पिटल वेस्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिसमें आपकी नीडल्स हैं जिनको आपने डिस्पोज ऑफ करना है, जिसमें आपका दूसरा स्टफ है जो आपने डिस्पोज ऑफ करना है। तो I will go back to Kiran. जी किरण, over to you. If you want to, आप देखो किस तरह के लेके चल रहे हैं फिर। जी, आज का तो टाइम आई थिंक ओवर हो गया है। एक तो आप सबसे अपोलोजाइज करना चाहूंगी क्योंकि इंटरनेट आज आई थिंक ओवरऑल लैग था, तो हमारी वीडियोस जो है वो थोड़ी डिलेज के साथ आ रही थी, बट आई थिंक वॉइस बिल्कुल सही आ रही थी। नेक्स्ट वीक का जो सेशन है, इट्स ऑन क्लिनिकल फीचर्स एंड एक्स्ट्रा हेपेटिक मैनिफेस्टेशन ऑफ HBV, और दिस इज बाय डॉक्टर अली हैदर। और इसके अलावा वी डू इनकरेज केसेस फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स। अगर आपके कोई केसेस हैं और आप खुद प्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो डू कॉन्टेक्ट अस। हम आपको केसेस के फॉर्मेट्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं, और इफ़ यू वांट हम आपके वो केसेस आपके लिए प्रेजेंट भी कर सकते हैं। हेपेटाइटिस सीरीज में यूजुअली हम केसेस को लेके चलते हैं, तो इसके लिए हम आपको ज़रूर इनकरेज करते हैं कि आप अपने अपने केसेस हमें प्रोवाइड करें। Or we are grateful and thankful to Pakistan Society of Hepatology, our expert for tonight, Dr. Raja Ikram Sahab, and Ferosans Laboratory Limited for unrestricted educational grant, and our team at Parsa Trust and Parsa Eco Pakistan. So Allah Hafiz. Uzair, you can एक चीज मैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से कहूंगा, ये जो क्वेश्चंस हैं सारे के सारे जो चैट में हैं, जस्ट मेक अ नोट ऑफ इट, क्योंकि हमारे रिकॉर्ड में होगा। what we will do is we will properly phrase the questions और उसके आंसर्स लिख के आपसे शेयर करते जाएंगे।
उससे ये होगा कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए भी इजी हो जाएगा और वो हमारे लिए भी एक वो बनती जाएगी, एक किस्म की वो एक कलेक्शन बनती जाएगी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की। तो काइंडली किरण और जहर आप इसको नोट कर लें, इनके सारे क्वेश्चंस विल गेट देम प्रॉपरली आंसर्ड, ताकि वो आपका एक हमारा सेक्शन बनता जाए। थैंक यू जी जी, ओवर ओवर टू यू। Sure, Dr. Asad, we will do that. अभी भी मैंने कुछ copy paste कर लिए हैं and we will do that in the future as well. Thank you जी, अल्लाह हाफिज। Thank you, Ji. And Thank you so much. Allah Hafiz. Thank you. Uzair, you can call up the meeting.